Good evening, sir. Very good evening. So, how are you all today? I'm also fit as a fiddle. So, today I'm here to start a very important chapter in English grammar. Especially, actually, this chapter generally help us to actually build up our communication skills. Build up our communication skills. And today's topic is in English grammar is here group discussion. Group, are we talking each and every points? What is group discussion? What is important for a good communicator? Means once I told you, if you means everybody speaks Hindi or English, right? हिंदी और इंग्लिश हर कोई बोलता है, बट उनकी जो एक्सेंट होती है, उनकी जो बोलचाल की जो कला होती है, मेथड होती है, वो उसको महान बनाती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्वामी जी ने क्या कहा था, विवेकानंद जी ने, लैंग्वेज विंस द हार्ट एंड विनिंग द हार्ट मीन्स विनिंग द होल वर्ल्ड। What was his first word in Chicago speech when he was delivering a speech in front of the American sisters and brothers of America, right? So that's why I'm today actually here from a very long time. Actually, I wanted to actually teach you this important chapter over here. So today, actually, you just see on the whiteboard. First of all, we will be actually able to see here the definition. Nilesh, look at the board. Nilesh. Okay, don't disturb him. Okay, GD. GD, what is exactly the definition is? GD is a discussion among a group of people. GD is a, what is it? Discussion among of a group of people, right? On a specific topic to exchange views. Group discussion एक हमारा डिस्कशन होता है, बातचीत होता है लोगों के द्वारा किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, जिस पे हम लोग क्या करते हैं हम लोग अपनी व्यूज को, अपनी आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और वहां से आइडिया हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। गॉट इट? सो हियर मेनली देयर आर 4 kinds of group discussion. The first is here topic based GD, case study GD, role play GD, and group task GD. Means group GD means, you know, do you know group discussion? Topic based GD is also having 3 actually types. First, abstract GD. अब भाई abstract GD क्या होता है? Just like abstract noun, जैसे based on our ideas, on our imagination, यानी हम उस चीज को हम कल्पना करते हैं जैसे टाइम इज मनी, वाई टाइम इज इंपॉर्टेंट। भाई मैं हमेशा कहता हूं ना आप लोगों को, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो ये हो गया आपका। अब भाई समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती तो इमेजिनेशन समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, लेकिन समय तो अपना चलते रहता है ना। अभी अगर आपका समय हुआ है 5:10 तो समय तो चलते रहेगा। समय किसी की प्रतीक्षा करती है क्या? नहीं, लेकिन समय के अनुसार आपको चलना है। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोवर्शियल जीडी। कंट्रोवर्शियल जीडी, जैसे कंट्रोवर्सी बहुत चलता है, नहीं मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, नहीं वो बोलेगा नहीं मैं आई एम नॉट एक्चुअली एग्री विथ योर पॉइंट्स, एग्री विथ योर व्यूज, एग्री विथ योर ओपिनियन। न्यूज चैनल में देखते हो कि नहीं, एक कांग्रेस वाला रहता है, एक भाजपा वाला रहता है, एक कांग्रेस वाला रहता है, एक भाजपा वाला पार्टी का रहता है। नहीं, हमारी सरकार ने बहुत सारी चीजों को की है। भाजपा वाले बोलते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं नहीं हमारी जो सरकार है वो कई वर्षों से इस देश में राज की है और कई चीजों को जो है इन्वेंट की है, इंप्लीमेंट की है। तो वहां पे कंट्रोवर्शियल हो गया। क्या हो गया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर देन ऑफलाइन। क्या ऑनलाइन क्लासेस बेटर है ऑफलाइन से, या ऑफलाइन क्लासेस बेटर है ऑनलाइन क्लासेस से? आज के जमाने में हम लोग 5G जनरेशन में वी आर लिविंग इन विच जनरेशन?
5G generation, and where we have a good communication, connectivity, where we have good, a strong network, you can say 5G network we are using, right? But nowadays, online classes, most of the students, if they are not be able to afford, if their parents are not be able to afford their children to send in Delhi, send different cities for actually getting knowledge, for further study, for further actually education, then mainly what happens to the student? Their parents request, yeah, the student can understand that we have to join the online classes, right? By while getting the subscriptions of the channel, YouTube channel, or any different actually platform of the social medias, then you will be able to watch the videos, classes of a different teachers through the online way. Getting my point? Okay. The third is case study, GD. Means we will be discussing about the real life situations, find solutions. When I start your class, especially for the GD classes, then first of all, GD actually also enhance our brains. जब हम कोई बातों को सोचते हैं, जो तुम्हारे दिल में, जैसे मैंने एक टॉपिक दे दिया कि विच क्लासेस आर मोर इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, तो तुम्हारे अंदर में नहीं, सर ऑफलाइन क्लासेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वहां पे सर जो होते हैं वो फिजिकल होते हैं, सर से कुछ क्वेश्चन अगर पूछना होता है तो पूछ सकते हैं। क्या आप कहोगे? आप कुछ कोई बोलेगा नहीं सर ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर देन ऑफलाइन, because it doesn't kill the time, we have not to carry any bag or box, right? And we have not to actually go through the motorcycle or bicycle. We can study more about any chapter through the online way, right? तो सबके दो पहलू होते हैं, उसमें नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है, ठीक है? ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, actually these were the actually classification of topic based GD. Now we have to study, and actually we have to study the definition of the topic based GD. Getting my point? Are you getting my point or not? Okay, yeah, just see the by topic based GD क्या होता है? Discussion on a specific topic. Topic based GD, we actually studied this kind of a GD. Yeah, we create the environment for a specific GD just because of the a specific topic, just like important of social media on important of, yeah, impact, you can say impact of social media on a student. Social media just like a Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. What exactly is the impact of the social media in your life? Social media is a good for your life, social media is a bad for your life, for your career. We have to judge, we have to decide. कोई बोलेगा नहीं सोशल मीडिया बहुत अच्छा है सर, कई लोग बड़े बड़े यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं, मिलियंस बिलियंस में उनकी व्यूज जाती है और उसे पैसा कमाते हैं। कोई बोलेंगे नहीं सर सोशल मीडिया में वही चीज दिखाया जाता है जो किताबों में लिखी रहती है ना? जो किताबों में जो नॉलेज होती है वो सबसे बेस्ट नॉलेज होती है, और किताब में जो मीडिया में जो दिखाया जाता है सोशल मीडिया में, वो रियलिस्टिक नहीं होती है, वो फिक्शनल स्टोरी से रिलेटेड होती है। गुड इट। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी जीडी। उसमें हम लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं रियल लाइफ। क्या हम लोग करते हैं? रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या है? सिचुएशन टू फाइंड सॉल्यूशंस। सिचुएशन टू फाइंड सॉल्यूशन। सपोज दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, if there would be actually problem in your life, then how would you find the solution in your life? So first of all, would be studying this actually kind of a GD to get the solution and to find the solution. Any confusion? Here the example over here, solving a school discipline issues. It's a biggest issue for a school. Last day we have actually gathered a meeting. There was a meeting in our office, and especially the teachers of our school, even the management, as the part of the management, right? We have discussed more about how we can actually implement the communication, English communication in our school, and how the student will be well disciplined in our school.
Yeah, so it was about the case study GD. इसमें बताया जाता है बच्चों कि कैसे हम एक प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को पीटना नहीं है, बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को डराना भी नहीं है। उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज, राइट, हाउ वुड वी कंट्रोल आवर स्कूल चिल्ड्रन? How would we control our school children? By actually delivering the positive stories to our children. Then only they'll be able to understand why our teachers actually forcing us to actually make the discipline, right? So it was about the case study and the role play GD. Participant play different roles in a discussion. Yeah, one day I have taught you the conversation, English conversation, and I have selected two pairs, one pair is equal to 2 student, right? हमने चुना था, एक डॉक्टर का रोल कर रहा है, एक पेशेंट का रोल कर रहा है। एक बच्चा जो है डॉक्टर का रोल कर रहा था, एक बच्चा क्या कर रहा था, पेशेंट का रोल कर रहा था। यानी रोल प्ले डीजीडी उसी को बोलते हैं। जैसे क्या हो, मैं एक डायरेक्टर हूं या मैं प्रिंसिपल हूं विवेकानंद विद्यालय का, मैं हूं, मेरे स्कूल में हम डिसिप्लिन पे, लैंग्वेज पे कैसे हम बात करेंगे, या मैं नहीं हूं, सपोज मैं रियल में हूं और कोई व्यक्ति अगर मैं आपको जीडी दे दूं, इफ यू आर द प्रिंसिपल ऑफ विवेकानंद विद्यालय, देन हाउ कुड यू मैनेज द डिसिप्लिन एंड लैंग्वेज इन योर स्कूल? 4 बच्चे इधर जाएंगे, 4 बच्चे इधर आएंगे, ठीक है? बोलो नहीं सर, हम बच्चों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं बाय गिविंग देम पनिशमेंट। कोई बच्चे बोलो सर, we are not to manage this our student by not giving the punishment. We can manage our student by requesting them again and again, by actually using the formal words to them. This kind of things can be that can be discussed on the actually role play GD. Is there any problem? आ रहा है समझ में कि नहीं? बैक साइड, okay. Now the last is group task GD. Group task GD क्या होता है? Task is given to a complete through teamwork. Obviously, जैसे आप एक टीम वर्क हो, जैसे गूगल, जैसे वहां पे क्या होता है, गूगल में कोई सॉफ्टवेयर जब अपडेट होता है, जैसे मोबाइल में आपके सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, मोबाइल यूज करते हो कि नहीं करते? तो आपका iOS वर्जन यूज करते हो आईफोन के लिए, और एंड्रॉइड वर्जन जो होता है वो एंड्रॉइड मोबाइल के लिए होता है, या हम लोग पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, उसमें भी हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो उसके पहले क्या होता है कि जो सीईओ है उस कंपनी की, जो ऑनर है उस कंपनी की, फर्स्ट ऑफ ऑल दे एक्चुअली हेल्ड अ मीटिंग एंड दे एक्चुअली टोटली दे विल डिस्कस ऑन द इम्पैक्ट, दे विल डिस्कस ऑन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग ऑन द upcoming updates. Then only they will release the update after 2 days, after 3 days, after 5 days. ठीक है? उस अपडेट में क्या क्या नया होने वाला है कि नहीं, वो बोलेगा नहीं हम कस्टमर को ऐसे दे सकते हैं सर, तभी ना हमारा प्रोडक्ट को यूज करेगा। हम कस्टमर को, हम अपने मोबाइल में क्या होता है, कैमरा को बहुत ज्यादा जूमिंग पावर दे देंगे, तभी ना वो होगा। उसी को कहते हैं हम लोग ग्रुप टास्क जीडी। इसमें लगभग लाखों लोग होते हैं, 10,000 लोग होते हैं उस एक छोटे से कमरे में बैठ के। वो कोई भी देखो बेटा, मैं एक चीज बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर क्या बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब दुनिया के कितने भी लीडर्स होते हैं, जब कोई डिस्कशन होती है, जब कोई जंग छिड़ती है ना, सबसे पहले एक बैठक बुलाई जाती है, ठीक है? उस बैठक में सारे अपोजिशन के लीडर होते हैं और जो गवर्नमेंट में लीडर होते हैं वो भी होते हैं कि हम कोई टेररिस्ट हो हमारे देश में आ गया हो, घुस गया हो, हमला कर रहा है, तो उसके पहले हम लोग सारी तरीके से हम लोग जो है, हमारी जो आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया जो विभाग जिसको हम लोग कहते हैं, जो सीआईडी होती है, सीबीआई होती है, और भी जो पूरे जो जिस स्टेट के जो होती है पुलिस जो बटालियन होती है, उसको और ज्यादा मुस्तैद कर दिया जाता है उस बात करने के लिए, और वो जो उसके चीफ होते हैं उसको बुला लिया जाता है। समझ में आया? तो उसी को कहते हैं हम लोग ग्रुप टास्क जीडी। एक ग्रुप टास्क मतलब मीन्स दिस ग्रुप ऑफ टास्क गिवन टू ग्रुप ऑफ पीपल to discuss on the various specific topic. Is there any problem, my dear student? Okay. So did you understand this? Now come to here in the right way.
हाउ टू स्टार्ट अ जीडी, हम लोग जीडी स्टार्ट कैसे करते हैं। जैसे टॉपिक आपको देंगे, मैं टुडे आई विल प्रोवाइड यू द टॉपिक। ओके, सबसे पहले हम लोग ग्रीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट ग्रीटिंग। नाउ इट्स गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। यस, टुडे we all gathered here to discuss a topic, and the today's topic is the impact of social media on student, social media on student। ठीक है, तो क्लियरली हमें बताना है और हमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हमारा सबको अभिवादन करना है। आप अकेले तो हो नहीं वहां पे, ठीक है, तो लगभग 10 लोग 20 लोग या लाख लोग भी रह सकते हैं उस ग्रुप डिस्कशन में। उसके बाद हमारा है इंट्रोड्यूस द टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया क्यों जरूरी है। सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी यूज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्चुअली गैजेट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स कैन बी यूज, राइट। हम लोग कहते हैं ना कि सोशल मीडिया हमारी मुट्ठी में है। BSNL का प्रचार एक आया था जब हम लोग रेडियो में मतलब मैच को सुनते थे, कमेंट्री को सुनते थे, उसमें जो है बच्चों, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये BSNL का प्रचार था। किसका था? कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो वो प्रचार आज से 20 साल 25 साल पहले का था। और रियली में चाहे वो जियो की बात हो, चाहे वो एयरटेल की बात हो, हमने अपनी पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है। कर लिया कि नहीं? कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, तो उसमें बात करने के लिए क्लियरली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्चुअली टेल व्हाट द टॉपिक इज अबाउट, व्हाट द टॉपिक इज अबाउट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे टुडे एज वी आर हियर टू डिस्कस, या टुडे एज वी आर हियर टू गैदर, दो तरीके से बोल सकते हैं। टुडे एज वी आर हियर टू गैदर टू डिस्कस अ टॉपिक ऑन इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट, राइट। अब हमारा थर्ड नंबर में आता है गिव अ सिंपल डेफिनेशन और मीनिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोशल मीडिया के बारे में बताएंगे हम लोग। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी बातों को रख सकते हो, ठीक है, ताकि लोग उसको और जानकारी प्राप्त कर सके। अब देयर आर मींस एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिनेशन, एज यू हैव आस्क्ड मी द एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन, राइट। सो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एक वर्ड का डेफिनेशन मीन्स बहुत सारे होते हैं। आ रहा समझ में कि नहीं? नेक्स्ट है हमारा 4 में, स्टेट द इंपॉर्टेंस व्हाई सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई बताएगा क्यों इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया हमारे लिए? क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्यों? हम लोग सब कोई व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं ना, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी चीजें जो होती है हमारे देश में, विदेश में, चाहे कहीं भी कोई घटना, इफ एनी ट्रेजेडी occurs in a different region of our country, different actually place of our country, different district of our country, then we can get the information in a very short period of time, in a very short period of time. That's why the social media is very important in our life. अभी कभी कभी लोग एडिक्टेड हो गए सोशल मीडिया, रील्स पे रील्स दबाए जा रहे हैं, रील्स पे रील्स जो है प्रेस करते जा रहे हैं, और वो एडिक्टेड हो गए हैं। हमको रील्स देखना है भाई, रील्स, डाटा आपका चल ही रहा है। जब डाटा जो है खत्म हो जाता है तो फिर आप लोग उसको 10 रुपया का रिचार्ज करते हो, 15 रुपया का रिचार्ज करते हो, फिर डाटा 1 GB मिलता है आपको। रील्स पे रील्स होते हैं। सो वी आर नॉट टू पास ऑन द आवर इंपॉर्टेंट टाइम ऑन सोशल मीडिया, ओनली वी कैन जस्ट सी द इंपॉर्टेंट क्लासेस, important things on the social medias. But some of the peoples in actually urban or rural areas, they are actually passing while scrolling down the reels only, right? Are you also passing the time in the same way? Speak loudly. No, you are not to pass the time. Next is present or views are briefly. अभी उसकी जो वर्तमान में क्या जो है उसकी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो गिव योर ओपिनियन और बोथ साइड। पहला उसकी, अब सोशल मीडिया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पॉजिटिव वे में भी जानेंगे हम लोग और उसको नेगेटिव वे में। अब सोशल मीडिया, लोग पहले जमाने में कोई IAS नहीं होता था क्या? पहले जमाने में कल्पना चावला, वो भी हमारे देश के साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है कि नहीं? तो क्या पहले जमाने में
जब आज से मैं बहुत साल पहले अगर हम ले लेते ओके, तो बच्चों कुछ टेक्निकल इश्यू आई थी जिसकी वजह से जो है वीडियो हमारा जो है कट गया था। तो मैं फिर से तो हर एक टॉपिक का एक पॉजिटिव मायना होता है, एक नेगेटिव मायना होता है। सोशल मीडिया में हम लोग तरह तरह के रील्स को देखते हैं, तरह तरह चीज़ों को दिखाया जाता है। आपके पेरेंट्स भी कहते हैं, आपके टीचर्स भी कहते हैं कि बेटा आपको उस चीज़ों को नहीं देखना है, लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज़ों को देखते हैं। पहला हमारा जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, हमारे लिए आंख में प्रॉब्लम होती है, हमारे पास दिमाग में चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं? जब हम मोबाइल चला के देखते हैं, सबसे पहले आई साइट में प्रॉब्लम होगी आपकी, ठीक है, और प्रॉब्लम होने के बाद आप उस चीज़ की आदी हो जाओगे और मोबाइल के बिना आपका मन नहीं लगेगा। हमारे ज़माने में अगर हम एंसेस्टर की बात करें, उसमें कोई सोशल मीडिया नहीं होता था। उस समय में भी लोग आईएएस होते थे, उस समय भी लोग साइंटिस्ट होते थे, है ना? इफ यू टॉक अबाउट ओल्डन डेज। ओके, नेक्स्ट हमारा है इनवाइट। क्या करेंगे हम लोग? इनवाइट करेंगे, टू इनवाइट अदर स्पीकर टू स्पीक ऑन द सेम टॉपिक। एंड वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ देयर वुड बी एनी एक्चुअली अपोज का मतलब करना, कि कहने का मतलब ये हुआ कि नहीं सोशल मीडिया आपको अपोज करना नहीं इंपॉर्टेंट है, ये बोलेगा नहीं इंपॉर्टेंट है, तो आपको कहोगे आई एम नॉट हाईली सेटिस्फाइड विथ माई लास्ट ओपोनेंट, आई वॉन्ट टू एड सम मोर पॉइंट, या आई वॉन्ट टू टेल माई ओन व्यूज ऑन दिस टॉपिक। अगर मान लिया जाए 4 लोग एक पक्ष में हो, 4 लोग इधर हो, तो बोलोगे कि नहीं इसका टॉपिक मुझे पसंद नहीं आया। ओके, टू माई माइंड ऐसे स्टार्ट करोगे, टू माई माइंड आई एम नॉट हाईली सेटिस्फाइड विथ माई लास्ट ओपोनेंट that he has used, that he has actually told us that social medias are very good platform for the student। ये बोलेगा तो अपने बारे में पूरा डिटेल बताएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बोलेगा कि नहीं आई वांट टू ऐड सम मोर पॉइंट। अगर इसको बोलना है कि अगर ये इसकी पॉइंट जो है खत्म हुई और वो अच्छा बात बोला, तो फिर आपको अपने आप को जितना है ना भाई, तो जितना है कि नहीं जितना है, तो वो बोलेगा कि नहीं आई वांट टू ऐड सम मोर पॉइंट from on behalf of my colleagues, on behalf of my team, है ना? So how was the class, my dear student? Very nice. तो कल का जो टॉपिक है आप लोग नोट कर लीजिए। कल का टॉपिक है आप लोगों का who is more important? Who is more important for a family? A son or a daughter? अपने परिवार के लिए अपने परिवार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? एक बेटा होता है या एक बेटी होती है? कल इस टॉपिक को लिख लोगे, अपना टॉपिक लिखोगे बच्चों। मैं जितने भी यहाँ पे हैं लगभग हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट हियर नाउ? कितने बच्चे हो आप लोग? 15 ना? इंक्रीज द लाइट धनराज। ओके, 15 स्टूडेंट। तो उसमें डिवाइड करना है आपको। एक लिखेगा हु इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ फैमिली, आ डॉटर। हम बता देते हैं टॉपिक। फॉर अ फैमिली, डॉटर इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ सन, बिकॉज अ डॉटर ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ देयर फादर एंड मदर. Daughter is just like a God is Lakshmi in our society, right? तो मैंने डॉक्टर के बारे में बताया, बेटी के बारे में बताया। अब बोलोगे नो, आई एम नॉट हाईली सेटिस्फाइड with the last point of my opponent. A son is more important than a daughter, because he cares his parents whole life. But a daughter, when she gets married, she goes to. Are you getting my point? फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे, as a parents, we have to also arrange dowry for the daughter, but we have not to arrange any dowry for the son. बेटा बहुत सारा टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए, और आपको मैं बता दे रहा हूं, you will be also a master in
कहते हैं ना कि मास्टर द लैंग्वेज मास्टर द वर्ल्ड, ये मेरा स्टेटमेंट है। मास्टर द लैंग्वेज मास्टर द वर्ल्ड। अगर आप लैंग्वेज के मास्टर हो तो पूरी दुनिया को मास्टर हो आप, जिसे मैंने नहीं बताया। सो दैट्स इनफ फॉर योर क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।